Welcome class. Now we all study our next chapter, that is chapter 4, working of institution. Before this chapter, that is chapter 3, we have discussed how elections were held and what is the responsibility of leader and how the government work and how the people participate for vote and make their representative, and their representative have further work to do in state or in the center. Now we will study in the deep thinking that how they will work. Okay, is there only one people who just give command or just follow a rules, or there are a several department which combinedly work as a institution? Okay, so let us begin. So we have discussed what should be, we will discuss here. Okay, how the laws were uh, made and how it is executed, and how if somebody not follow the law, if somebody not agree with the things that is mentioned in our institutions and violating that law, what the judiciary do, we will all look at this. Okay, now first of all this particular paragraph. Okay, I hope this is very clear to you all. Okay, let us begin. In a democracy, the rulers have to follow some rules and procedures. They have to work with and within the institution. In this process, they come across a three institutions that play a key role in a major discussions or decisions. These institutions are legislature, executive, and judiciary. In this chapter, we will understand how all the institutions together carry on the work of the government. So, these three parts were the institutions for your government to work in a parallel way and for goodwill of your people as a whole. Okay, here, how is a major policy decision were taken? Before that, there is a process of taking a major policy decision. We will study this. A major policy decision is taken through a government order. To know the process of taking a major policy decision, it is important to know about the government order and its issuing. तो जितनी भी ऑर्डर्स हैं जो गवर्नमेंट हमें देती है, ठीक है, तो वो किस तरीके से बनती है, पहले उसका क्या रफ स्केच बनता है, किस तरीके से वो लोगों से डिस्कस किया जाता है, कितने लोग उसमें अग्री करते हैं, देन फाइनल डिसीजन लेकर के हम उसे उसमें किसके हम साइन लेते हैं. वी ऑल विल डिस्कस दिस हेयर. अ गवर्नमेंट ऑर्डर. Issuing of government order. A government order is a written direction on an issue signed by a government authority, that is, एग्जाम्पल के तौर पे एक दे रखा है कि किस तरीके से गवर्नमेंट के कोई भी ऑर्डर को रिटन डायरेक्शन में किस तरीके से लिखा जाता है. सो ऑन 13 अगस्त 1990 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर. इट वॉज कॉल्ड एन ऑफिस मेमोरेंडम. तो गवर्नमेंट से जो ऑर्डर बनने के लिए पहले चीज़ें जो लिखी जाती हैं उससे आप कहते हैं ऑफिस मेमोरेंडम. ठीक है, इसको भी हम लॉ नहीं कहेंगे. इट हैड अ स्पेसिफिक नंबर. इट वॉज साइंड बाय द जॉइंट सेक्रेटरी who is an officer in the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personal Public Grievance and Pensions. तो ये सारे आपके ऑफिशियल्स पर्सन होते हैं इम्पोर्टेंट, जो इस चीज़ को साइन करते हैं जब कोई गवर्नमेंट अपना ऑर्डर देने के लिए एक ऑफिस मेमोरेंडम बनाती है. ठीक है, तो जो भी चीज़ें आप बनाना चाह रहे हैं उसके लिए रिसर्च, उसके ऊपर सारे सही डाटाज, प्लस उसमें जितने भी आपके इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स हैं, जॉइंट सेक्रेटरीज हैं, उनकी साइन होते हैं, तब जाके इसको पार्लियामेंट में पेश किया जाता है. देन डिसीजन announced by an order. The order announced a major policy decisions. According to the order, जो ये ऑर्डर आपने देख रहे हैं नीचे, तो इस ऑर्डर को देखिए किस तरीके से नाम दिया गया है. ओके, किस तरीके से देखिए नाम दिया गया है, इसका एक प्रॉपर नाम है, नंबर है. ठीक है, सीरीज़ के लिए, एंड सब्जेक्ट भी दिया हुआ है कि हम किस टॉपिक पे
यहाँ पे बात करेंगे। ये एक मेमोरेंडम है, उसके बारे में नीचे सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि एक मेमोरेंडम पास हुआ था 13/8/1990 को, जिसमें ये बात की गई थी कि हमें 27% ऑफ वैकेंसीज इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट वर रिजर्व्ड फॉर SEBC, दैट इज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक मेमोरेंडम बनाया गया कि ये चीज़ पास होनी चाहिए कि 27% वैकेंसी जो है वो सोशली बैकवर्ड और एजुकेशनली बैकवर्ड पीपल के लिए रिजर्व होनी चाहिए। अर्लियर दिस बेनिफिट ऑफ जॉब रिजर्वेशन वॉज अवेलेबल टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। पहले के टाइम ये चीज़ जो थी वो रिजर्व थी किसके लिए? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। नाउ द थर्ड कैटेगरी दैट इज SEBC वॉज ऑल्सो एलिजिबल फॉर कोटा ऑफ 27%। और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें डिस्कस होने के बाद लोगों ने अब ये भी डिमांड किया कि जो सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, अब उनकी भी सीट रिजर्व रहनी चाहिए कि किसके साथ? SC एंड ST के साथ ही। ये तो पहले से रिजर्वेशन में थे, अब वो भी लोग रिजर्वेशन में शामिल हो गए जो सोशली एंड एजुकेशनली, यानी कि उनकी जो पढ़ाई से रिलेटेड जो उनकी बैकवर्डनेस है, ये वो भी अब इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे। अब इसकी वजह से कुछ चीज़ें कंट्रोवर्सीज में आई। कंट्रोवर्सीज ओवर द ऑर्डर, द इशूइंग ऑर्डर led to the country wide protest. Some of the protests were violent. As a result, the issues then the issues become the most debated in the media with different view and opinion. The people reacted strongly because this decision affected thousands of job opportunity. अब इस चीज़ का प्रोटेस्ट हुआ क्यों? क्योंकि लोग समझ रहे थे कि जितने भी लोगों को अगर हम ये चीज़ पास करवा दें, ये ऑर्डर अगर हम पास करा दें, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसका अनवांटेड फ़ायदा ले सकते हैं, और जिसकी वजह से जो जॉब अपॉर्चुनिटी है जिसको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो इस वजह से इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट किया गया। एन अपील टू बी स्टॉप इम्प्लीमेंटेशन, और इसको ये भी कहा गया कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बंद किया जाए। ठीक है, इसको हम नहीं अलाउ करेंगे और इसको जितना जल्दी हो सके इसको बंद करिए। और इस वजह से क्या हुआ, इतना ज़्यादा इसका प्रोटेस्ट होने लगा कि लोगों को बाद में इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट में केस के तौर पे दायर करना पड़ा। अब देखिए, जब भी कोई गवर्नमेंट होती है और वो देखती हैं कि कोई भी लॉ पास नहीं हो रहा और इलेक्शन का समय आता है, तो वो इसी चीज़ को अपना मेन मोटिव बना के गवर्नमेंट बनाने के लिए तैयारी करते हैं। तो वैसे ही आपकी एक जनता दल पार्टी उस समय थे जिन्होंने ये प्रॉमिस कर दिया लोगों से कि हम इस मेमोरेंडम को पास कराएंगे और उसमें थोड़ा सुधार करके इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो लोग खुश भी थे कि कोई तो इस चीज़ को सुन रहा है। एंड एट दैट टाइम 1980 के समय जब जनता दल पार्टी जीत जाती हैं और उन्होंने जो प्रॉमिस किया था कि हम इस मंडल कमीशन रिपोर्ट को तैयार करने के साथ इसमें थोड़ा चेंज करेंगे, तब जो लीडर थे VP सिंह उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने इस चीज़ को वापस ठीक करके इम्प्लीमेंट करने की बात की। ओके, देन व्हाट हैपन दैट ये चीज़ आगे बात की गई, इस चीज़ पे डिस्कशन हुआ और लोगों ने इस चीज़ को पास भी कराया, साइन भी हुआ। दोनों हाउसों में इसका डिस्कशन हुआ, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट ने इसे साइन भी किया और बाद में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। ठीक है, 13 अगस्त 1990 को इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। स्टिल पीपल वर नॉट हैप्पी एंड इश्यूज डिबेट्स चल रहे थे न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, और लोगों ने एट दैट टाइम प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लोग इतने ज़्यादा परेशान थे क्योंकि इनइक्वालिटी वो फील कर रहे थे कि जो लोग पढ़े लिखे हैं बस उन्हीं को जॉब मिलेगी और जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं फिर वो रह जाएंगे। ठीक है, तो रिजर्वेशन की जो बात की जा रही थी, लोग इस चीज़ को अब महसूस कर रहे थे, इसीलिए वो इस मेमोरेंडम से
खफा थे और लोगों ने ये सोचा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, और प्रोटेस्ट करने के बाद ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया कि इसको सुप्रीम कोर्ट पे या सुप्रीम कोर्ट में इसका डिक्लेरेशन किया गया, जहाँ पे इसको रजिस्टर किया गया इन द केस ऑफ इंदिरा स्वयंने एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो इस नाम से इस केस को रजिस्टर किया गया, क्योंकि लोग इस लॉ से बिल्कुल हैप्पी नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेरेशन किया कि ओवर द ऑर्डर बाय अ मेजॉरिटी द सुप्रीम कोर्ट इन 1992 डिक्लेयर द ऑर्डर वैलिड। उन्होंने कहा कि ये ऑर्डर जो है वैलिड है, लेकिन कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, और कुछ चीज़ों को उन्होंने रियलिटी देखनी है। रियलिटी मतलब अगर हम इस ऑर्डर को परफॉर्म करें तो इसकी ओरिजिनलिटी कितनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के बाद इस चीज़ को वापस इम्प्लीमेंट किया गया। द ऑर्डर वॉज मॉडिफाइड एंड डिक्लेयर दैट वेल टू डू and to go with the persons of backward classes should be excluded from the benefit of reservation. 8 September 1993 में another memorandum was issued by the Department of Personnel Training. Since then the dispute ended and the same policy was followed. तो इस चीज़ का असर हुआ, चेंजेस करने के बाद, मॉडिफिकेशन के बाद इसको इशू कर दिया गया। तब तक लोगों का गुस्सा, प्रोटेस्ट शांत हो चुका था। ओके, द मेन इवेंट ऑफ बिफोर द पासिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर। तो कुछ चीज़ें जो ये सारी चीज़ें पास हुई वो हमने आपसे डिस्कस कर ली हैं कि किस तरीके से ये ऑर्डर पास करने के लिए आपकी जो गवर्नमेंट होती है वो इसी चीज़ को अपनी गोल बना लेती है। और डिसीज़न कैसे लिया जाता है, डिसीज़न मेकर की हम बात करें तो अब हमें डिसीज़न मेकर की अगर हमें बात करनी है, चलिए एक टॉपिक जो है वो थोड़ा सा इसी में मिक्स हो गया है, मैं आपको इसको अब सेपरेटली समझा रही हूँ। द डिसीज़न मेकर्स। डिसीज़न मेकर्स क्या होता है? द मेजर डिसीज़न इन्वॉल्व सम मेजर फंक्शनिंग इन आवर कंट्री। देयर आर प्रेसिडेंट, ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड इज़ द हाइएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री। अगर तो हेड ऑफ़ द स्टेट किसको कहा जाता है या फर्स्ट पर्सन ऑफ कंट्री किससे कहा जाता है, वो हैं आपके प्रेसिडेंट। अभी मैंने इससे पहले आपको जो भी समझाया वो इन द रेफरेंस ऑफ SE शेड्यूल, जो सोशली बैकवर्ड एजुकेशनल क्लास है, इसके लिए मैंने समझाया था। अब हम इसको इंडिविजुअली हम पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से डिसीज़न मेकिंग में लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो प्रेसिडेंट हैं सबसे पहले, इनको फॉर्मल अथॉरिटी कहा जाता है, हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी हैं ये, एंड इनको हेड ऑफ द स्टेट भी कहा जाता है। देन यू हैव योर प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है ही वॉज और ही इज़ द हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड actually exercises all the government power. He takes most of the decisions in cabinet meeting. तो इनके पास ज़्यादा पावर होती है एज़ कम्पेयर टू प्रेसिडेंट। अब आते हैं आपके तीसरी चीज़ जो कि डिसीज़न मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, वो है आपका पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट की क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस, 2 हाउसेस हैं, आप सभी को पता है। 2 हाउसेस एंड लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा को आप लोअर हाउस भी कह सकते हैं, और इसमें वो लोग आते हैं जिनको आप इलेक्ट करते हैं और वो वहाँ जा कर के अपनी सीट्स पे रहते हैं। एक होते हैं आपके हाउस रिप्रेजेंटेटिव, जिसको आप कह सकते हैं अपर हाउस, और राज्यसभा। इसमें इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरीज़ के चीज़ों को देखा जाता है, और इसमें प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए सबसे ज़्यादा सपोर्ट और सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में सपोर्ट मिलना चाहिए किसकी तरफ से? लोकसभा की तरफ से। ओके, नाउ in our country all the major decisions are taken by the councils. Okay, all the major decisions was taken by the councils. All the major decisions that are taken by our councils of minister in the cabinet meeting headed by the prime minister. तो जितनी भी हमारी काउंसिल मीटिंग होती है उसके हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। आफ्टर दैट द डिसीजन वॉज डिस्कस इन द पार्लियामेंट। उसके बाद कुछ भी आपने जो भी लॉ बनाना है उस चीज़ को आपने अपने कैबिनेट
मेंबर्स के साथ इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसको पार्लियामेंट में लेके जाया जाता है जिसमें आपके लोकसभा और राज्यसभा होते हैं. आफ्टर द अप्रूवल ऑफ बोथ द हाउसेस इट इज़ साइंड बाय योर प्रेसिडेंट फाइनल अप्रूवल के लिए. वंस द डिसीजन इज अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट इट इज़ रेडी टू बी इम्प्लीमेंटेड एंड इशूड बाय द कंसर्न गवर्नमेंट अथॉरिटी एज अ गवर्नमेंट ऑर्डर. तो आफ्टर द सिग्नेचर ऑफ योर प्रेसिडेंट इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट कर देते थे. अंडरस्टूड. एक और टॉपिक है जो कि हमने इसी मंडल कमीशंस के हिसाब से पढ़ लिया था, जो कि है हाउ टू अपोज गवर्नमेंट डिसीजन. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने क्लास 6 में इस चीज़ के बारे में पढ़ा ही है कि अगर आप गवर्नमेंट की चीज़ों से हैप्पी नहीं हैं तो आप क्या करेंगे. यस, आप क्या करेंगे, आप उस चीज़ का प्रोटेस्ट करेंगे, आप उस चीज़ के लिए रैलीज़ निकालेंगे, सिग्नेचर कैंपेन करेंगे. जैसे कि आपने देखा है अभी इसी चैप्टर में जो गवर्नमेंट ने इशू किया था डिसीजन 27% ऑफ रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जिसके लिए आपने लोगों ने प्रोटेस्ट किया गया और इतना प्रोटेस्ट हुआ कि बाद में इसको रजिस्टर किया गया एज अ केस इन सुप्रीम कोर्ट. और इस केस का नाम क्या था, इंदिरा स्वयंने एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन केस. हमने इसको आपको अलग से इसलिए समझा रहे हैं कि स्टोरी से उसे समझना इजी हो जाता है एज कंपेयर टू योर थ्योरी. अंडरस्टूड. So this is the way that they protest. Now we will study about need of or need for political institution. हमें political institution की ज़रूरत क्या है. Okay, so we will discuss here. So political institution की ज़रूरत इसलिए है so that the arrangement made in the democracies to take decisions implemented the decision to see what is wrong and what is right in case of disputes regarding the decision are sealed political institution. तो किस तरीके से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है कि पहली चीज़ किस तरीके से हम चीज़ों को देख सकें, किस तरीके से हम चीज़ों को फॉर्मुलेट कर सकें, किस तरीके से वो लोगों को हेल्प करेगा या उस चीज़ को उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा. प्लस हमें क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, ये सभी चीज़ हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की वजह से ही जान पाते हैं. सो विदाउट द फंक्शंस ऑफ द टास्क असाइन टू द पॉलिटिकल without the functions of task assigned by the political institution, the democracy cannot work. तो जिस तरीके का काम या जिस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं चीज़ों को, अगर वो चीज़ हमारे साथ नहीं और वो चीज़ हमारे साथ काम नहीं कर रही है, द डेमोक्रेसी कैन नॉट वर्क. Institutions involve rules and regulation which can bind the hands of the leader. सो रूल्स एंड रेगुलेशंस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत इसलिए है सो दैट कि लीडर्स जो हैं वो अपने हिसाब से कोई भी डिसीज़न लीड ना कर सकें. ठीक है. सो दिस रूल्स एंड रेगुलेशन इज़ जस्ट अ बाइंड द हैंड. ज़रूरत से ज़्यादा कोई डिसीज़न लेना या ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ का लग्जरी लाइफ को जीना, ये सब चीज़ों को थोड़ा सा सीमित तरीके से या थोड़ा सा कांस्टेंट वे से यूज़ करने के लिए आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. ओके. बाय हैविंग मीटिंग्स एरिड मेकिंग communities institutions consult a wider set of people for any decision. Institution make it difficult to have a good decision taken very quickly, but at the same time they make it equally difficult to rush through a bad decision. तो हाँ, एक और चीज़ है कि अगर आप कोई डिसीज़न ले रहे हैं किसी भी इस इंस्टीट्यूशन में, तो अगर जितनी जल्दी आप डिसीज़न ले रहे हैं उतना ज़्यादा गुड हो सकता है, ये हम नहीं कह सकते. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक अ गुड डिसीज़न. आपको बहुत सारी चीज़ों का डिस्कशन करना होता है, बहुत सारी चीज़ों फैक्ट्स को फिगर्स को रेफ़र करना पड़ता है, और इट इज़ वेरी ईजी टू मेक अ रश डिसीज़न दैट इज़ अगेन
विच विल बी बैड। जो भी आप जल्दी में रश में डिसीज़न बनाते हैं विदाउट कंसल्टिंग एनी फैक्ट्स एंड फिगर, आपको हमेशा बैड डिसीज़न ही मिलेगा। तो डेमोक्रेसी या इस पार्लियामेंट में जब आप रहते हैं, इस इंस्टीट्यूशन में जब आप रहते हैं, तो आपको जो डिसीज़न लेना होता है वो आप क्विकली नहीं ले सकते। जो क्विकली डिसीज़न होगा वो बैड डिसीज़न होगा फॉर योर पीपल। अंडरस्टूड? ना वी विल लुक हेयर नाउ पार्लियामेंट। तो अब हम पार्लियामेंट की बात कर लेते हैं। देख लीजिए, हमने आपको अभी यही समझाया है। अब हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट की। ओके, सो पार्लियामेंट Parliament is a set of people elected regularly by the people of the country directly through the direct election or indirectly through the indirect elections. So directly यानी कि लोकसभा और indirectly यानी कि राज्यसभा। All the by the government before implementation are put in the parliament for discussions. Decisions can be implemented only after the approval by the parliament. तो जितने भी डिसीज़न यहाँ पे लिए जा रहे हैं वो सबसे पहले पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ करता है। सो जितने भी पार्लियामेंट में ये मेमोरेंडम आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो डिस्कस किए जाते हैं सो दैट इट इज़ क्रॉस चेक, इट इज़ डिस्कस्ड बाय ईच एंड एवरी इंडिविजुअल रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी। तब जाके ये प्रेसिडेंट से साइन हो करके और फिर पास होता है। अच्छा, नीड क्या है? नीड ऑफ पार्लियामेंट मतलब हमें क्यों ज़रूरत है पार्लियामेंट की? सो सम अदर रीजन दैट वी स्ट्रिक्टली नीडेड दैट वी नीड अवर पार्लियामेंट बिकॉज पार्लियामेंट इज़ द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग न्यू लॉज एंड चेंजिंग एग्जिस्टिंग लॉ इन आवर कंट्री। पार्लियामेंट इसलिए ज़रूरी है सो दैट कि वो हमारे किसी भी फाइनल लॉ को डिस्कस कर सके, और अगर कोई पुराना लॉ है उसमें थोड़ा सा चेंजेस करने की ज़रूरत है, उसके लिए भी आपको पार्लियामेंट की ज़रूरत है। इन इंडिया द कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट ओवर द गवर्नमेंट इज़ डायरेक्टली एंड फुल्ली। Those who run the government can take decision only as long as they enjoy the support of parliament. इंडिया में पार्लियामेंट पे कंट्रोल वही करते हैं जो गवर्नमेंट में होते हैं, डायरेक्ट और फुल्ली कंट्रोल करते हैं ये। अब ये फुल्ली कंट्रोल का क्या मतलब है? जब तक उनकी गवर्नमेंट रहती है तब तक उनको सपोर्ट मिलता है पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट हैज़। इट मोस्ट कंट्रीज पब्लिक मनी कैन बी स्पेंड ओनली व्हेन पार्लियामेंट सैंक्शन इट। और पार्लियामेंट का और क्या काम है? पार्लियामेंट का तीसरा काम है गवर्नमेंट को पैसे सेंक्शन करना। जितना अगर आपकी कंट्री ज़्यादा डिमांड कर रही है मनी की, वो तभी आपको मिलेगा जब तक पार्लियामेंट में वो सेंक्शन यानी कि वो मंजूरी ना करें। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ इम्पॉर्टेंट चीज़। पार्लियामेंट को हाईएस्ट फोरम ऑफ डिसीजन कहा गया है, जहाँ पे डिबेट होता है पब्लिक इश्यूज़ के बारे में और नेशनल पॉलिसीज़ जो भी कंट्री में हमें लागू करनी है। पार्लियामेंट कैन सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर, और हम पार्लियामेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन पे बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर रिप्रेजेंटेटिव। नाउ कमिंग टू द सेकेंड टॉपिक विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ पार्लियामेंट के जो दो हाउसेस हैं, दो रिप्रेजेंटेटिव हाउसेस हैं, उनका क्या जॉब कहें या उनका क्या रोल होता है टू मेक एनी लॉ into our constitution or any draft into a law. Okay, so two houses of parliaments are, you know that now far we have discussed so many times. So the parliament play a central role in a modern democracy. Large countries have divided the role and power of parliament into two parts. They are chambers of और हाउसेस। तो पार्लियामेंट की जो पावर है वो डिवाइडेड है दो हाउस में, या तो आप उसको हाउस कहें या तो आप उसको चैम्बर्स कहें। यूजली वन हाउस इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड एक्सरसाइज द रियल पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। आपको इसके बारे में आंसर पता ही होगा, लोकसभा की बात की जा रही है। द सेकेंड हाउस इज़ यूजली इलेक्टेड
Indirectly, its main work is to look after the interest of various state, regions, and federal union. Indian parliaments consist of two houses or chambers, Lok Sabha जिसको आप कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल, एंड राज्य सभा, ओके, काउंसिल ऑफ स्टेट्स. लोअर चैम्बर आप लोकसभा को कहते हैं. इट इज़ यूजली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल एंड एक्सरसाइजेज द रियल पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल. राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट, इसको अपर चैम्बर भी कहा जाता है या अपर हाउस कहा जाता है. इट इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड एंड परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस सच एज इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट्स, regions or federal unit. The President of India is a part of a parliament. President of India जो हैं वो पार्ट होते हैं किसके? पार्लियामेंट, आपके इसी पार्लियामेंट के ही. Secondly, although she is not a member of either house due to she or he, due to this reason that all laws made in the houses comes into force only after they receive the assist of the president. तो प्रेसिडेंट जो हैं उनकी मेन फोर्स पावर क्या है? वो किसी भी लॉ को या किसी भी ड्राफ्ट को या एक्ट को तब तक अप्रूवल नहीं माना जाएगा जब तक वो प्रेसिडेंट से साइन ना हो. अब आते हैं हम कुछ और बात कर लेते हैं स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा ओवर द राज्यसभा. अच्छा, अगर हम ये कहें कि राज्यसभा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू योर लोकसभा, तो इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं. कौन कौन से ऐसे स्पेशल पावर्स हैं जो कि लोकसभा को मिले हैं. आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स सम स्पेशल पावर टू राज्यसभा, बट ऑन मोस्ट ऑफ द मैटर द लोकसभा एक्सरसाइजेज सुप्रीम पावर. अगर आप नोटिस करें जो राज्यसभा जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड तो है नहीं, इट इज़ इनडायरेक्टली इलेक्टेड. तो इनकी पावर ज़्यादा होगी? नहीं, ऐसा नहीं है. कुछ मामलों में लोकसभा को ज़्यादा सुप्रीम पावर को एक्सरसाइज करना पड़ता है. दीज आर, अब इसको हम वन बाय वन पढ़ रहे हैं तो आप समझते हुए चलिएगा. एनी ऑर्डिनरी लॉ नीड्स टू बी passed by both the houses, but if there is a difference between the two houses, the final decision is taken in a joint session, where the view of Lok Sabha is likely to prevail because of its large number of members. Suppose लोकसभा और राज्यसभा में कोई डिस्कशन हुआ. अब उसमें लोकसभा में ज़्यादा लोगों ने वोट किया एज़ कम्पेयर टू राज्यसभा. अब इस चीज़ को तो हम लॉ बनाने के लिए साइन के लिए नहीं भेज सकते क्योंकि जो मेजॉरिटी है वो अभी कम है, ठीक है, राज्यसभा से. तब क्या होता है? तब एक जॉइंट सेशन होता है. जॉइंट सेशन में क्या होता है? जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों पार्टिसिपेट करते हैं और फिर से इस डिसीजन को डिस्कस किया जाता है. एट लास्ट वोटिंग होती है और आप जान सकते हैं कि लोकसभा के मेंबर्स ज़्यादा होते हैं तो इस वजह से फेयर चांस मिल जाता है लोकसभा को टू पास दैट ऑर्डर. और राज्यसभा के मेंबर्स थोड़े कम होते हैं इसीलिए ये माइनॉरिटी में भी रह जाते हैं, ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज लोकसभा एक्सरसाइजेज मोर पावर इन मनी मैटर वंस द लोकसभा passes the budget of the government or any other money related law or money bill for Rajya Sabha cannot reject it. सो अगर लोकसभा में मनी पावर का मैटर अगर हम डिस्कस कर रहे हैं और वो लोकसभा में पास हो जा रहा है तब मनी रिलेटेड लॉ या मनी बिल, तब राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, उन्हें वहाँ पे साइन करना होता है. ओके, ये एक पावर है लोकसभा के पास. अब आते हैं हम दूसरी पावर की बात कर लेते हैं. ओके, थर्ड वन, राज्यसभा कैन ओनली डिले इट बाय 14 days और सजेस्ट टू चेंज इट, बट फॉर लोकसभा मे और मे नॉट एक्सेप्ट दीज चेंजेस. लोकसभा में अगर कोई डिसीज़न वापस आया है तो उस चीज़ को वो चेंज या एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ये एक पावर है. और ये राज्यसभा में 14 days के बाद वो डिले कर सकते हैं, मतलब उस डिसीज़न को पास करने के लिए वो 14 days का डिले कर सकते हैं या कुछ चेंजेस जो हैं वो वहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं. ये राज्यसभा के पास है और ये चीज़ लोकसभा नहीं कर सकती, ठीक है. नाउ कमिंग टू द फोर्थ टॉपिक,
1 सेकेंड। 4th जो है बच्चे वो इसी में ही इंक्लूडेड है, तो आप एक बार चेक कर लीजिए, मैं रीड कर दे रही हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फॉर अ लोक सभा कंट्रोल्स फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली अ पर्सन हु एंजॉय अ सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी। लोक सभा is appointed prime minister if the majority of Lok Sabha members say that they have no confidence in council of ministers. All the ministers including prime minister have to quit, but for Rajya Sabha does not have this power. अगर हाँ एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है यहाँ, सपोज़ अगर लोकसभा के मेंबर ये सपोज़ कर रहे हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में उनकी अब कोई भी नो कॉन्फिडेंस, लोकसभा के मेंबर्स अगर काउंसिल के जो मिनिस्टर्स हैं यानी प्राइम मिनिस्टर के जो भी मिनिस्ट्री ग्रुप है, कैबिनेट मिनिस्टर, उनको कह दें कि इन वोट कर दें कि नो कॉन्फिडेंस है, कि हम इस जो रूलिंग पार्टी है इससे हम कोई उम्मीद नहीं रख रहे हैं, तब प्राइम मिनिस्टर को और उनके सभी मिनिस्टर्स को रिज़ाइन देना पड़ता है, क्विट करना पड़ता है, और ये चीज़ राज्यसभा में ऐसी नहीं होती है। ओके, अब देख लीजिए बेटा, अ डे इन द लोकसभा और अ डे इन द लाइफ ऑफ द लोकसभा, तो किस तरीके से लोकसभा में लोगों का काम होता है, किस तरीके से, ठीक है। तो ये होता है 11 o'clock में वेरियस मिनिस्टर्स गेव रिटन आंसर्स टू अबाउट 250 क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड बाय द मेंबर। दीज इंक्लूड्स व्हाट इज़ द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन टॉकिंग टू मिलिटेंट ग्रुप इन कश्मीर। तो ये एक स्टोरी को लेते हुए आपको कुछ चीज़ें समझाई गई हैं, ठीक है। फिर 12 o'clock में अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वर प्रेजेंटेड एंड वर अवेलेबल